Uh, Very good morning to all of you here. Most respected Dean Agriculture, Dr. Chaturvedi sir, respected Dean Horticulture sir, Dr. A.K. Pandey sir, uh, Director Education sir, Dr. Anil Kumar sir, our University Librarian, Dr. Kushwa sir, all the head of the departments, faculty members, and my dear students, NSS volunteers. Uh, Today, we are having with us Dr. Puneet Chaudhary, sir. You all know that he is our medical officer. And from the last few days, even the Honorable Vice Chancellor, sir, when he was interacting with all of us and the students, he was always saying that keep the number of our doctor so that whenever you need you have any query or in case of emergency, you can just contact him. So after having discussion with our deans and directors, it was thought that why not let us have a common platform whereby the students can interact with the doctor sir directly. And as we all know, two things are today, two questions are being raised as to how to prevent ourselves from corona and how to uh, get medicated. So what is important today is that how we can, apart from masking, get vaccinated, and keeping the all the points in mind, whether how many days, after how many days we should be vaccinated if we are already positive, what are the doses. There are so many queries which come into the mind. Keeping all these point in view, the doctor sir suggested that let us keep a interactive session on COVID-19 and vaccination for it. Though the session will be open for all type of questions. Those who are suffering from corona may ask any query if they have. So it will be a very informal, open, interactive session for all of us. But main focus is here how to get ourselves vaccinated and be prepared for the fight. I also welcome our student welfare officer, Dr. Manmohan Dobyal sir, and Dr. Anil Kumar sir has joined. Now we can see photo, so I am again welcoming Director Education, Dr. Anil Kumar sir. Before I introduce and start our interactive session, I would request Dean Agriculture sir to stay and interact with all of us. Dean Agriculture sir, please. Thanks, Dr. Sharma. I can see many seniors, and welcome to Dr. Puneet Chaudhary first, because this is for him, his show. And I am sure that you all will agree that Dr. Puneet Chaudhary has done really a commendable job during last 2.5 months. And we all must congratulate him and appreciate him for his services, what he has rendered. I should say 24 by 7. Anytime anybody has called, and he has immediately responded, and he has taken good care of all. I know, because I was also suffer for some time, and I could see, really, I could realize his sincerity. And just welcome to Dr. Anil Kumar ji, Dr. Kushwaha ji. I can see Dr. Pandey Sahib is also there. Dr. Dobayal sir has also joined. Very good. Dr. Jamulkar Sahib is also there. So welcome to you all, and dear students. The importance of this particular lecture, I would like to highlight that everybody is having some kind of fear. So this fear psychosis has to be removed with respect to corona itself, or the vaccination, or post or pre-care, or post corona care. These are some of the issues I think our university Dr. Puneet Chaudhary is going to share with you all, and he will be resolving all those issues. If you have any queries, certainly you can directly interact with the Dr. Sahib. And my request to all will be that kindly, if you want to ask something, kindly write in chat box as well. That's important. So just you can write down in chat box. Then during discussion, we should not unmute our own mic. So let us mute it so that there is no disturbance. Then coming to the NSS program, Dr. Gaurav Sharma and his team is taking good care. And you all will agree that during this period, it was not possible to take up some of the activities physically. So I think it's a good initiative to have interaction with today with the our medical officer. Then maybe
on another day we can have interaction with the Dean Horticulture or maybe with the Honorable Vice Chancellor, or some of the points I can also share. I think with that way we can certainly try to complete the formalities of the NSS program as well, but some of the activities are mandatory. And I must appreciate that some of the students are doing very good job, and I am receiving some of the messages from those students. And yesterday I could see that one student, he has very nicely prepared that one app, and I was just going through. Of course, that few edits are required, so I have suggested him to go for the editing in some of the pages. And I think he has done good job, and maybe next week he will be sharing with all colleagues, including the faculty members. So that's good initiative. So I'm sure that Dr. Gaurav Sharma is taking good care of the students, because now, and he has very good linkage with the students. And our Honorable Vice Chancellor has interacted with, I think, with all the students, of course, batch-wise or in semester-wise, including PG students as well. And we had one meeting with the faculty, and now we have already noted all those issues related to the students, and one by one we have taken up to resolve them. And it's today's lecture is going to be one of the issue, because many students were asking that whether we should go for the vaccination, or Covaxin is good, or Covishield is good, or Sputnik is good. So there are many confusions in the mind because of the, I should say, WhatsApp guru. So WhatsApp guru has created a lot of confusion among the students, even among the faculty. So I am sure that Dr. Puneet Chaudhary will be able to resolve most of the issues, I am sure, because he is competent. And I could see that last year also, since he has served for in a COVID hospital for 6 months or so, so he had very good exposure for this particular disease as well. So with this, I thank you all, and just I request Dr. Gaurav Sharma to proceed. Dr. Gaurav Sharma, please. Thanks. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable words. I would also request here our Dean Horticulture, sir, Dr. Pandey, sir, if you can hear, sir, to address our students. Actually, he is having some network issues. So then, okay, then we can proceed, and we'll request sir when he's back. So before proceeding and inviting Dr. Puneet Chaudhary, sir, I would like to inform you all students about his brilliant professional background. Right now, Dr. Puneet Chaudhary Sahab is the medical officer of our esteemed RLB CAU University. He has done his MBBS from Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore, and did his postgraduate training in neuropsychiatry from Institute of Mental Health and Hospital IMHH, Agra. He has done also Diploma in Community Sciences, Bangalore. So we can see how much trained he is for his profession, and he has an experience of about over 15 years as a practicing physician. Though he looks very young, but we can see that he has a good experience of about more than 15 years. And in that you can see that he has worked as senior medical officer for about 9 years with the state health services, that too in a state like Uttar Pradesh. So we have a very vast experienced doctor with us, and I think since he has training in the medical sciences as well as, to add on, he has some experience on mental health. So as we have seen that Corona or this COVID-19, it does not affect us only physically, but it affects us mentally also. It's a psychological game which you win day by day. So I think he is the right and appropriate, most appropriate person to address us. And with this, I would request Dr. Saab to kindly interact and address our students and faculty members
In fact, I would request you to first brief about all these COVID issues and then about vaccination. And in the last, we will take up the questions. In the last, each student is requested to unmute and then speak and ask his question. Faculty members are also welcome to address this, to ask their questions. With this, I would request Dr. Puneet Chaudhary Sahab to address. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Gaurav, for giving me such a good introduction. So good morning, everyone. I am Dr. Puneet Chaudhary. I welcome all of you, respected members of this organizing committee and my dear students. I must say it is and appreciate that this is a very good initiative taken by Dr. Sharma and his team and all the other ones who are involved in this. Because as we all know that the second wave, it has hit us really hard this time, and it has become even more important now to understand what is vaccination all about and all the preventive measures. Because earlier we were thinking that, okay, COVID has come and COVID has gone. But now with the second wave, I think almost all of us have realized this, that no, it is going to stay with us, and we'll have to take all the precautions and the necessary procedures what we have right now, because COVID is here to stay. Even if we try a lot of things, like vaccination is the only options we have right now. So we'll be dealing with that. But one thing which should be clear in our mind is that COVID is here to stay. So we have to learn how to, stay with this COVID, and we have to be very scientific. So प्रॉब्लम इस बार ये हुई है सेकेंड वेव के साथ कि हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स को उतनी अच्छी तरह फॉलो नहीं किया, या फिर साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द इल इंफॉर्मेशन, एंड वी टुक इट कैजुअली. बिकॉज फर्स्ट वेव आई मस्ट से हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, बहुत कम कैजुअलिटीज हुई, बट इन द एंड शायद दिसंबर में, जनवरी में हम लोग काफ़ी लूज हो गए. वी स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स विच वर नॉट राइट. सो सेकेंड वेव हिट अस, एंड आप सबको पता है कि कितने लोगों की लाइफ्स गई है और बहुत लोगों ने अपनों को खोया है. Last 1 month was definitely, it was traumatic. I was getting so many calls. हर जगह से कॉल आ रहा था, हर आदमी परेशान था और किसी तरीके से हर आदमी मदद के लिए कोशिश कर रहा था. But on the positive side, I would say that I never expected कि 1 महीने के अंदर हम लोग इस वेव को कम कर लेंगे और काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी. सो आई मस्ट से कि ये शायद हिंदुस्तान ही है जो इतनी जल्दी एक्शन भी ले लेता है, और लोगों का हार्ड वर्क, इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एंड इवन द कंट्रीमैन जिन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया सेकेंड वेव के बाद, और वो घर पर रहे. और शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस वेव को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया. ऑल्दो बहुत कैजुअलिटीज हुई, बट स्टिल इट इज कमेंडेबल, बिकॉज किसी भी और कंट्री में इतनी जो है लार्ज स्केल पे पेशेंट्स नहीं आए, और बहुत सारी कंट्रीज इसको हैंडल भी नहीं कर पाई. आपको इटली के बारे में पता है, अमेरिका के बारे में पता है, जहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, बट वो लोग भी उतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाए. बट हम लोगों ने, अगर हम 10 दिन छोड़ दें, जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था उस टाइम पे, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें मैनेज अच्छी हुई हैं. और हमको ब्राइट साइड हमेशा देखना चाहिए. हम लोगों को क्रिप नहीं करना चाहिए कि हम लोग ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली वी डिड व्हाट द बेस्ट वी कैन डू. So anyhow,
as vaccination is our topic today, I would like to give you one example because most of the students are here with us. Usually in our college days, we tend to see that during our exams, most of the students usually get panic or they get anxious. Not most of the students, but yeah, definitely some students do get panic, and they are anxious about their exam, what they're going through. And there are some students which are usually okay, and then there are some जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. Mild anxiety और anxiety है ही नहीं, indifferent है. ऐसा क्यों होता है? What is the reason behind that? First, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो एंशियस पर्सनैलिटी होती हैं, डेफिनेटली वो हम डिनाई नहीं कर सकते. बट द हार्डकोर रीजन बिहाइंड दैट इज if you're not well prepared for your subject, if you're not well prepared for your subject, if you have not done hard work in that subject, anxiety is bound to happen. तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा एंजाइटी होती है या ज्यादा पैनिक होता है जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होता है. यही लॉजिक है हर तरीके की एंजाइटी में जब हम कोई नया काम करने जा रहे होते हैं. अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं उस सब्जेक्ट को लेके या उस टॉपिक को लेके या उस इवेंट को लेके, तो हमारा एंजाइटी का लेवल या स्ट्रेस का लेवल डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा. और साइंटिफिकली माना यह जाता है कि एक्सट्रीम एंजाइटी या फिर एंजाइटी नहीं होना, दोनों चीजें खराब है. मॉडरेट एंजाइटी इज ऑलवेज गुड टू गिव यू गुड रिजल्ट, एंड एक्सट्रीम एंजाइटी विल गोइंग टू हैम्पर योर रिजल्ट. Why I am saying this in this context, because we are discussing about vaccination and other things. Why I have taken this example is because vaccination about COVID vaccination is a new thing for all of us, because it has developed in a very short span of time. So we all have a lot of doubts, a lot of anxiousness about this vaccination. So by getting well informed scientifically, we can definitely get our anxiety to minimize it and clear our doubts, so that whenever we go for vaccination, हम संतुष्ट रहें कि हम जो कराने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता है. So that is the reason why I told you a little example, because most of the students are here, तो college का example ज़्यादा अच्छा था देना. Now coming on to the topic which is about vaccination. Now what headings we'll definitely discuss about vaccination is what all questions we have in our mind about vaccination. It would be why should we get vaccination? When should we get vaccination? How does vaccination work? Are there any side effects to it? And what are the interval between the doses? Is there any contraindications? What is herd immunity? And what are the preventive measures we need to take before taking vaccination and after vaccination? So these are the things which we'll gonna cover in this session, and I hope after this session is over, most of the doubts up to some extent will be cleared, and I'll try my best in my best possible capacity to explain you all these things. Now in India, like, we have two vaccines presently. Sputnik is one more, which is will be available soon. The two vaccines are Covishield and Covaxin. Covishield by Serum Institute of India and Covaxin by Bharat Biotech. Now there is a doubt in everyone's mind whether Covishield is better or Covaxin is better. We should go for Covaxin or Covishield. It should come to an end now, because we should understand one thing.
कि कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आती है उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया जाता है, तभी वो मार्केट में आती है या पब्लिक के यूज के लिए उसे अनुमति मिलती है। तो ये डाउट कि हम कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं, कौन सी बेटर है, ये सारी चीजें हमको रेलेवेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ बीइंग in this country that we have made 2 vaccines, Covishield and Covaxin. बहुत सारी कंट्रीज में तो एक भी वैक्सीन बन नहीं पाई। सो बोथ आर इक्वली गुड, एफिकेशियस, सेफ्टी नॉर्म्स ठीक हैं दोनों के। तो और हमारे पास चॉइस भी नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है कि हम कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं। तो जिस भी सेंटर पे आप अपने आप को एनरोल करते हैं, वहां जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, बिल्कुल बिना डर के वो वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। दैट इज वन थिंग। दोनों वैक्सीन्स का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन अलग है। कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का जो डोज इंटरवल है वो थोड़ा बहुत अलग है, वो विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट। एंड नाउ why should we all get vaccinated? Vaccination is important because, as we all know, right from the beginning, we know there are a lot of diseases जो बचपन में हमारे को वैक्सीनेशन किया जाता है। बहुत सारी डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया था, इसकी वजह से वो डिजीजेस इरेडिकेट हो गई हैं। बहुत टाइम लगा। एक वैक्सीनेशन को एक्चुअली बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं, 10 to 15 years, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। बट दिस टाइम दिस वैक्सीनेशन took only 1.5 years or so. So this is a commendable job which is done by our scientists all over the world, because this situation was not normal. हमें वैक्सीनेशन की जरूरत थी, हमारे पास 10 साल नहीं थे। बट ये वैक्सीनेशन अगर इतनी जल्दी बनी है, that doesn't mean कि ये सेफ नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये वैक्सीनेशन जल्दी बनी है, प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए सेफ नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। टाइम कहाँ बचाया गया है? टाइम ऐसे बचाया गया है कि जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते थे उनमें टाइम लगता था, कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ता था, वो सारी चीज़ों का टाइम शॉर्ट कर दिया गया, जल्दी जल्दी परमिशंस मिली गई, और इस वजह से ये वैक्सीनेशन हम लोग जल्दी प्रोसेस कर पाए। सो ये एक चीज है जो डाउट लोगों के मन में है। तो इट शुड बी क्लियर दैट प्रॉपर ट्रायल्स हैव बीन रन, सारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखा गया है और सारी चीजों को कंसिडर किया गया है, उसके बाद ही वैक्सीनेशन बाहर आई है मार्केट में। सो वैक्सीनेशन बेसिकली थोड़ा सा डेविएट हो गए हम टॉपिक से। वैक्सीनेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? व्हाई शुड वी ऑल गेट वैक्सीनेटेड? वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है, व्हाट वैक्सीनेशन डज टू आवर बॉडी इज कि व्हेन वी गेट अ शॉट, इट इज अ इट इज नेवर अ लाइव वायरस जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन में है। इट इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस which is usually used in the vaccines, जो हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, so that they can form antibodies against that virus. So we'll be having pre-formed antibodies when the next time when the virus hit us or when we are infected by that virus. So already we'll be having antibodies against it. So what it does is, अगर हमारे बॉडी में अपने आप पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, although it is artificially induced, तो वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी को रिड्यूस कर देगा, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होने देगा, एंड इट विल बी लाइफ सेविंग, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो नहीं पाएंगे, हम उसकी सीवियरिटी को मिनिमाइज कर देंगे
और बहुत सारे इंसिडेंट्स में तो ऐसा भी होगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वेदर दे आर इन्फेक्टेड और नॉट। एक दो दिन हल्के फुल्के सिम्टम आए और चीजें ठीक हो जाएंगी, बट बिकॉज द एफिकेसी इज नॉट 100%, इट इज गुड। तो हमारे को सिम्टम्स भी आएंगे, कुछ लोग थोड़े बहुत सीरियस भी होंगे, बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होंगी चीजें। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज हाउ द वैक्सीन्स वर्क। Now the interval between the doses. What is the interval between the doses and why is that so? दोनों डोजेस, दोनों को वैक्सीन्स के बीच का डोजेस थोड़ा अलग अलग है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट कोविशील्ड फर्स्ट, so the time interval is between 4 to 6 weeks. The first is first dose you first shot you took, then after 4 to 6 weeks you can take second shot. ये पहले था। अब इसमें भी बहुत संशय है लोगों का कि शायद हमारे पास वैक्सीन्स की कमी है, इसलिए हम उसका टाइम इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कोवैक्सीन का टाइम कांस्टेंट है, जितना पहले बताया था अभी भी उतना ही दे रहे हैं, बट कोविशील्ड का टाइम हम इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं सेकेंड डोज का। वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जब हम 6 वीक्स पे लगवा रहे थे तब उसकी एफिकेसी अराउंड 59% आ रही थी। जब हमने उसको 8 वीक्स किया तो उसकी एफिकेसी थोड़ी और बड़ी परसेंटेज। जब हमने उसको 12 वीक्स किया तो उसकी एफिकेसी और ज्यादा बढ़ी। जब 16 वीक्स की बात हुई तो उससे ज्यादा बढ़ी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, चीजें होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, और इससे पता लगता है कि कितना हम बेस्ट ले सकते हैं उस वैक्सीन से। हमें वो साइंटिफिक तरीके से पता लगता है और वो कर रहे हैं। तो ये संशय जो दिमाग में हम लोगों के है कि शायद वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट और कंट्रीज में भी ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो कोवैक्सीन के साथ भी हम लोग ऐसा करते, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो कोविशील्ड का टाइम इस समय सेकेंड डोज 12 to 16 वीक्स तक कर दिया गया है और कोवैक्सीन का 4 to 6 वीक्स। Now there's one more doubt or question which comes in our mind is, if you are COVID positive, then when you can get vaccine? अगर आप COVID positive हो जाते हैं तब आप वैक्सीन कब ले सकते हैं? तो it is very important to understand, if you are COVID positive, आपको वैक्सीन इमीडिएटली लेने की जरूरत नहीं है। आपको वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 90 days, अराउंड 3 months। उसका भी साइंटिफिक रीजन है why you have to wait for 90 days। आपको वेट 90 days के लिए क्यों करना है? इसलिए नहीं कि वैक्सीन की शॉर्टेज, बट साइंटिफिकली इसलिए वेट करना है आपको कि आपके ऑलरेडी एंटीबॉडीज, जो कि नेचुरल एंटीबॉडी है, नेचुरल एंटीबॉडी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो आपके बॉडी में 90 days तक तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से रहेंगी ही रहेंगी, जिससे आप इन्फेक्ट दोबारा या उसकी सीवियरिटी दोबारा आपको नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है बट आपको उतनी सीवियरिटी नहीं मिलेगी। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इन दिस कंटेक्स्ट माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस टाइम। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट, कोविड पेशेंट्स, यूनिवर्सिटी के पेशेंट, कुछ पेशेंट्स काफरी में थे, स्टूडेंट्स थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, बहुत सारे दोस्तों के रिलेटिव्स थे, हर किसी का कॉल आ रहा था। बट वन थिंग वाज कॉमन, जिन भी लोगों को लास्ट टाइम कोविड हुआ था उनको इन्फेक्शन बहुत माइल्ड हुआ और उन्हें पता भी नहीं लगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम करती है। चाहे ये म्यूटेंट वायरस है, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। सो दैट मीन्स वैक्सीनेशन भी काम करेगी और एंटीबॉडीज आपकी बनेंगी तो वैक्सीनेशन भी काम करेगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं क्लिनिकली, कि लास्ट टाइम जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, स्पेशली अगर मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स थे,
लास्ट वेव में अराउंड 750 डॉक्टर्स डाइड, बट वो स्ट्रेन इतना वायरुलेंट नहीं था, इतना इन्फेक्शियस नहीं था, फिर भी इतने डॉक्टर्स की डेथ हुई। बट इस टाइम पे इतना इंटेंसिफाइड इन्फेक्शन था, सारी चीजें इतनी सारी थी, अराउंड 250 डॉक्टर्स की डेथ हुई। वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ हुई, बिकॉज मल्टीपल स्ट्रेन से वो एक्सपोज हो रहे थे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। बट पॉजिटिव साइन इसमें ये है कि कम डॉक्टर्स की डेथ हुई, इतना इंटेंसिफाइड काम करने के बाद, इतने मल्टीपल स्ट्रेन्स के साथ काम करने के बाद, और उनमें से कुछ डॉक्टर्स डेफिनेटली वैक्सीनेटेड नहीं भी थे, कुछ वैक्सीनेटेड भी थे जिनकी डेथ हुई। बट देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स बचे इस वजह से, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे। अदरवाइज लास्ट टाइम 750 डेथ हुआ था, तो इस बार उस प्रोपोर्शन में शायद और बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होनी चाहिए। सो इट इज अ पॉजिटिव साइन दैट डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज वर्किंग। और नॉर्मल पब्लिक के लिए, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, मल्टीपल स्ट्रेन से नहीं होता, तो उनको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। नाउ other important questions which come into our mind is, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हैं, yes and no both, I can say। साइड इफेक्ट हर वैक्सीनेशन के होते हैं, बट वो साइड इफेक्ट्स किस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं? आपने शुरू से देखा होगा, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू वैक्सीनेशन, आपके चाइल्डहुड में आपने अपने यहाँ छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वैक्सीनेशन लगवा के आते हैं तो उनको माइल्ड फीवर भी होता है, डॉक्टर बोलता है पैरासिटामोल आपको 1-2 दिन देनी है, या कई बार डायरिया हो जाता है, इंजेक्शन साइट पे पेन होता है। तो वो हर वैक्सीनेशन के साथ है, इसके साथ कुछ भी नया ऐसा नहीं। तो what all side effects we can see after having vaccination? Usual side effects, आपको बॉडी एक रह सकता है, पेन एट द इंजेक्शन साइट रह सकता है, राइट? आपको फीवर आ सकता है। ये इतना मास्क और सर्जिकल टोपी सबसे बड़ा ड्रामा। आपको जो है रैशेस थोड़े बहुत आ सकते हैं, कभी डायरिया हो सकता है, बट बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स रहेंगे, यूजुअली 1 or 2 days। फटीग रह सकता है, इट कैन एक्सटेंड अप टू 5 days, और उसमें हमको पैरासिटामोल जरूर ले लेना है। बट अगर ये सिम्टम्स आपके ज्यादा हुए या इंटेंसिफाइड हो और आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, या जहां पर आपने वैक्सीन लगवाई है उनको इन्फॉर्म करना है। इसका नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1075, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके पास एक नोटिफाइड मोबाइल नंबर आता है आपकी वैक्सीनेटर साइट का, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। क्या इस वैक्सीनेशन के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो ब्रॉडली स्पीकिंग कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। बट या जो टेम्पररी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इफ यू आर सीवियरली इल और यू आर अ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, चाहे वो कोई भी इलनेस हो, एनी काइंड ऑफ इलनेस, तब आपको ये वैक्सीनेशन उस समय नहीं लेनी है जब तक आप ठीक नहीं। एक्यूट इलनेस कुछ भी हो सकती है, एक डायरिया हो रहा है आपको, सीवियर डायरिया हो रहा है, या कोई भी तरीके का फीवर है, कुछ भी है, आप अगर एक्यूटली इल हैं, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप वैक्सीनेशन उस टाइम पे लें। आप जब ठीक हो जाते हैं, उसकी टाइम ड्यूरेशन, उसके 4 weeks के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये सम ऑफ द टेम्पररी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। कुछ लोगों को ये डाउट है कि वेदर जो सीवियर इलनेसेस हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, या जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, या कोई और टर्मिनल इलनेसेस हैं लाइक एड्स है,
या इम्यूनोसप्रेसिव जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे अर्थराइटिस है, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है? डेफिनेटली नहीं है। उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है, उन सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, बिकॉज बस इतना होगा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स हैं, लाइक जैसे कैंसर है या आपकी अर्थराइटिस है या फिर एड्स है, जहां पर कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं, उसमें एंटीबॉडीज उस लेवल पे नहीं बनेंगी जिस लेवल पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे बनती है, बट स्टिल बनेंगी और उसका कुछ फायदा जरूर होगा, बट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इज, जो हम लोगों को सबको ध्यान रखना है, कि अगर आपको फर्स्ट डोज लगाने के बाद कोई सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन। सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब है एलर्जी, बट एलर्जी उस लेवल पे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तब आपको सेकेंड डोज नहीं लेनी है, या फिर डॉक्टर से एडवाइस लेनी है कि वेदर वी शुड गो फॉर इट, बिकॉज फर्स्ट डोज में हमारे को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ था एंड दैट वाज लाइफ थ्रेटनिंग। देन ही विल डिसाइड वेदर you should go ahead with it or not. So that is one contraindication. Otherwise, everyone can take it. What are the preventive measures which we can take before vaccination? Vaccination से पहले हम लोग क्या measures ले सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जिस दिन आप अपना slot book करते हैं, आप well prepared रहें। slot book करने के बाद, if it is in the morning time, आफ्टरनून के टाइम पे है, जो भी आपका स्लॉट है, आप प्रॉपरली अपना ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो एम्प्टी स्टमक। अगर मॉर्निंग टाइम में है तो आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। इन द आफ्टरनून टाइम है तो आप अपना लंच प्रॉपरली करके जाएंगे। यू डोंट हैव टू बी एम्प्टी स्टमक। दूसरी चीज, आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं। यू हैव टू वियर लूज क्लोथ्स। इसलिए नहीं कि उसका कोई खास रीजन ये नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन साइट है, आपके अगर आर्म पे इंजेक्शन लगना है तो आप टाइट क्लोथ पहन के ना जाएं, आपको अनकंफर्टेबल होगा, जो वैक्सीनेटर है उसको भी अनकंफर्टेबल होगा। सो यू शुड वियर अ लूज क्लोथ्स, कि जिससे आप इजिली फटाफट वहां पर लगवा सकें। और आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो कर रहे हैं कोविड के, व्हेन यू आर गोइंग टू द वैक्सीनेशन साइट। जैसे कि आपको डबल मास्क लगा के जाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन करनी है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, और ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस भी साइट पे जा रहे हैं वहां पर अगर क्राउड ज्यादा है, इफ यू सी क्राउड बहुत ज्यादा है, यूजुअली ऐसा नहीं हो रहा है अब, बट फिर भी आपको मेजर लेना है कि अगर आपका क्राउड वहां ज्यादा है तो आपको इमीडिएटली अपना नंबर आने पर आप वैक्सीनेशन लगाइए, और हाफ एन आवर के लिए आपको जरूर वहां पर वेट करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि वो जगह पे लोग ज्यादा बैठे हैं तो आप अपनी कार में आके आप बैठ सकते हैं। और हाफ एन आवर इसलिए बैठना होता है कि कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो हम फौरन वैक्सीनेटर साइट पे पास जाके ट्रीटमेंट ले सकें। तो कोशिश ये करनी है कि हम वैक्सीनेशन लगाने जाएं और वहां से कोविड गिफ्ट में नहीं लेके आए। राइट, कोविड गिफ्ट में नहीं लेके आना है, वैक्सीनेशन लगवा के आनी है सिर्फ। और ये सब हम तब कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली प्रोटोकॉल को फॉलो करें। That is one thing, and I hope this is very important, because I have seen a lot of individuals who have gone to take vaccine in this period of second wave, और 4-5 दिन के बाद उनको फीवर ज्यादा आने लगा और जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए, because they didn't follow the usual protocol. So please रश ना करें। जब भी कोविड वैक्सीनेशन साइट पे जाएं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। कोविड को गिफ्ट में नहीं लेके आना है। अब मेजर्स हमें क्या लेने हैं वैक्सीनेशन के बाद?
वैक्सीनेशन के बाद मेजर्स हमें ये लेने हैं। जब हम घर पे आ जाते हैं तो यूजुअली हम लोगों को लगता है कि 6 to 8 आवर्स तक हमें लगता है कि अरे हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, वी आर परफेक्टली फाइन। लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। आफ्टर टेकिंग योर वैक्सीनेशन 6 to 8 आवर्स बाद आपको पैरासीटामोल टैबलेट ले लेनी है, चाहे आपको फीवर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। क्योंकि रात में जब आप सोएंगे उस समय यूजुअली फीवर लोगों को आता है, बॉडी एक होता है, और अगर आपने पहले से पैरासीटामोल ले ली होगी और एक रात को सोने से पहले ले ली होगी तो यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप पूरी रात अपने फीवर या बॉडी एक की वजह से नहीं सो पाएंगे तो नेक्स्ट डे आप बहुत स्ट्रेस में होंगे कि वैक्सीनेशन की वजह से मुझे कुछ हो गया है। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू फॉलो, बिकॉज आपको पैरासीटामोल लेनी है एक 6 आवर्स के बाद और एक बेड टाइम से पहले, जिससे आप नाइट में स्लीप अच्छी तरीके से ले पाए और अगले दिन एज रिक्वायर्ड अगर आपको लग रहा है बॉडी एक है, फटीग है, तो आप नेक्स्ट डे भी पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, एंड विच इज वेरी सेफ। बट ये भी ध्यान रखें कि नेक्स्ट 5 डेज तक भी फटीग, रेस्टलेसनेस थोड़ा बहुत रह सकता है, वो यूजुअल है, उसके लिए पैनिक ना करें। बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कुछ चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यूअर स्ट्रेन्स। जो ये वैक्सीन्स बहुत पहले बन गई हैं, क्या ये न्यू स्ट्रेन्स को हैंडल कर पाएंगी? तो साइंटिफिकली स्पीकिंग डेफिनेटली कर पाएंगी, बिकॉज वैक्सीनेशन जब वैक्सीन जब बनती है, व्हेन वी मेक अ न्यू वैक्सीन, तब केवल एक एंटीबॉडी नहीं बनती है हमारे बॉडी में। our body makes multiple antibody, multiple types of antibody। क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जाती है वो एक सेगमेंट के वायरस से के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाती है। इट मेक्स फॉर स्पाइक प्रोटीन्स एंड अदर सेगमेंट ऑफ द वायरस, तो मल्टीपल एंटीबॉडीज बनती हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी नए स्ट्रेन्स आएंगे, म्यूटेंट्स डेवलप होंगे, डबल म्यूटेंट्स डेवलप होंगे, तो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होगा। बट हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं जो वैक्सीनेशन से, वो मल्टीपल एंटीबॉडीज बन रही हैं, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए भी बन रही हैं। तो रीजनेबल जो है प्रोटेक्शन हमें न्यूअर स्ट्रेन से डेफिनेटली मिलता रहेगा। वो आने वाला टाइम हमको बताएगा कि हमको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट डेफिनेटली मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग सब आश्वस्त रहें कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन आज हमने एक स्ट्रेन के लिए लगवाया है तो न्यूअर स्ट्रेन्स के लिए हमें वैक्सीनेशन, हमारा ये वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा। ये डेफिनेटली करेगा, क्योंकि मल्टीपल एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज बनती है। जो इम्यून रिस्पांस है या प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के बाद, वो कब डेवलप होता है और किस लेवल पे डेवलप होता है, ये देखा गया है कि आप फर्स्ट डोज जो लेते हैं उसके बाद व्हेन यू टेक योर सेकंड डोज, उसके भी 2 वीक्स के बाद जो एंटीबॉडी का लेवल है वो उस मैक्सिमम लेवल पे रीच करता है जब हम कह सकते हैं कि वी विल गेट द प्रोटेक्शन। तो वैक्सीनेशन के सेकंड डोज के बाद आफ्टर 2 वीक्स द एंटीबॉडी लेवल विल रीच टू इट्स मैक्सिमम लेवल। एट दैट टाइम वी कैन से कि हम प्रोटेक्शन हमें इस वैक्सीनेशन से प्रॉपरली मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डोज के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, बट वो यूजुअली थोड़ी कम बनेगी, प्रोटेक्शन तब भी मिलेगा आपको। लेकिन सेकेंड डोज के बाद भी, सेकेंड डोज के सेकेंड वीक के बाद हमारा प्रोटेक्शन जो होगा एंटीबॉडीज के थ्रू, वो एक मैक्सिमम लेवल पे होगा। सो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है कि हमारा कोर्स पूरा हो जाए और उसके 2 वीक्स के बाद जो है एंटीबॉडी का लेवल
उतना हमारी बॉडी में आ जाएगा कि वी फील दैट वी कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इन्फेक्शन। आपने एक बहुत यूजुअल टर्म सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी बहुत टाइम से सुना जा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होनी है, और अगर हर्ड इम्यूनिटी एक बार डेवलप हो जाए तो हम सब लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से डेवलप हो सकती है। या तो सारी मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए या वैक्सीनेटेड हो जाए। बट ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जब इन्फेक्टेड हो जाएगी या वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो हम डेवलप कर लेंगे, या 90% वैक्सीनेटेड हो जाएगी या इन्फेक्टेड हो जाएगी तब हम अचीव कर लेंगे, ये वेरी करता है इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, वायरस टू वायरस। तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि हर्ड इम्यूनिटी किस लेवल पे कितना परसेंटेज के बाद डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ऐसे काम करती है कि जब मान लीजिए 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड एंड और वैक्सीनेटेड, तब होगा ये जो 30% ऑफ द पॉपुलेशन है वो वायरस उन लोगों को भी बचा लेगा, बिकॉज 70% of the population is now protected by having antibodies। तो जो वायरस का स्प्रेड है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोगों बीच में जो हैं जो प्रोटेक्टेड हैं उस वायरस से, तो उन 2 लोगों को स्प्रेड होने का चांसेस वैसे ही खत्म, वो वायरस की चेन वहीं ब्रेक हो जाएगी। सो मोटा मोटा एक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक समझने के लिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया। एंड आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड which usually comes into our mind regarding vaccination, I have almost tried to answer those questions जो usually हमारे दिमाग में आ रहे हैं इस समय पे। So I would like if आप लोगों के दिमाग में और कोई क्वेश्चंस हैं या और कोई डाउट्स हैं, सो यू ऑल कैन आस्क, और जो और भी मेंबर्स हैं वो अपने जो है एक्सपीरियंसेस कोविड के टाइम के, या उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या उनका मेंटल हेल्थ था, या क्या चीज़ों की वजह से उनको लगता है कि वो बच पाए, या क्या प्रिकॉशंस उन्होंने लिए, और कोविड टाइम का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो भी चाहें वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, या जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मा, आई थिंक यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच सर। रियली ये बहुत ही आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन थी, और हमारे बच्चों के लिए निश्चित तौर पे कई सारे डाउट्स तो आपने अपने लेक्चर में ही क्लियर कर दिए हैं। एंड नाउ आई थिंक वी कैन इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स फर्स्ट। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ शेयर करना हो तो वो अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। Dr. Gaurav Sharma, I think for Dr. Saab, there is one question from one of the students, and he is asking that in our locality 3 people have lost their life after getting vaccine. That has happened within 3 days. So what can be the reason? जैसा कि मैंने पहले डेफिनेटली आपको बताया कि ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेदर वैक्सीनेशन जब उन्होंने लिया था उनका प्रॉपर दोनों डोजेस पूरी हो गई थी या नहीं हुई थी, 2 वीक्स उनके पूरे हो गए थे या नहीं हुए थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो 2 वीक्स से ज्यादा टाइम ले रही हैं उन एंटीबॉडीज को बनने में। तो देयर आर चांसेस कि सीवियरिटी आए और लोगों को थोड़ी परेशानी आए, बट
ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर both the doses have been taken or not, और जो है एंटीबॉडीज जो है 2 वीक से ज्यादा हो चुका था उनको कि नहीं हुआ था, उससे पहले इन्फेक्ट हो गए या किस तरीके से रहा, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज इट इज अनलाइकली, हो सकता है बट इट इज अनलाइकली कि सीवियरिटी आए और डेथ जैसी कॉम्प्लिकेशन हो पाए। तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी, या तो उनकी टाइमिंग पूरी नहीं हुई होगी, या जो है दोनों डोजेस पूरी नहीं हुई होंगी, या 2 डोजेस के बाद का जो गैप है, जो एंटीबॉडी बनने का टाइम है, वो पूरा नहीं हुआ होगा। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एज आई हैव सेड कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी की डेथ हुई है वैक्सीनेशन लेने के बाद भी, बट मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं, ये स्ट्रेन्स काफ़ी डेडली हैं, तो मल्टीपल रीजंस हैं। बट ओवरऑल व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट ऑप्शंस। जैसे मैंने बताया कि 750 डॉक्टर पिछली बार डेथ हुआ था, और इस बार 250 डॉक्टर्स की डेथ हुई है, जिसमें से शायद 100 डॉक्टर्स ऐसे थे, या कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो फुली वैक्सीनेटेड थे। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो केवल एक वैक्सीन लिया हुआ था, जिनका पूरा कोर्स पूरा नहीं था। सो दैट इज ऑल आई कैन से इन दिस। We have also noticed in our locality here, Kanpur, and since we are involved with so many groups, and that's true that those who have taken vaccine, at least 1 dose, certainly corona might have affected them, but they remain safe to a greater extent. Then those who have taken 2 doses, and some of them, they were overconfident. So they had really not taken care. I know many people, they have not taken care and they were in trouble. And with the proper medication, now they are all right. And what you have said earlier, that's really important, that one should not change doctor. That's number one, what I'm feeling, because I was also for almost 15 days under your care only. So what I could notice at this university also, I know some of the faculty members or students, they were suffering, but they were trying to change the doctors. So somebody has suggested, okay, you take ivermectin. Other one suggested, no, you take, now you start that adjuvant. Somebody suggested some other medicine. So I think we should consult just one doctor. That's my advice to all the students and the faculty members. You should not change doctor frequently. Okay, that's one. If you want to have at all some advice from someone, certainly you can send the prescription, you can take second opinion, but again you should consult to the doctor whom you have started consulting first, because that's very important. I have noticed that at least 3-4 colleagues are known to me, and the same advice I have given to all of them also. One person, he started changing the doctor. So still yesterday I could talk, still he's in trouble. Then again I suggested him, how many doctors you have changed? He said 4. So now he's in Kanpur and he's undergoing taking the treatment with and consulting some other doctor. I said, no, you should not do. So now he said, no, now he's in hospital and doctor has said, if you want to survive, you remain in hospital for at least 15 days. It's not that you can go anywhere. You have to stay here. Otherwise, again, you will change something that nobody can save you. So now he himself admitted yesterday. So that's number one. Second, the following protocol. If somebody is taking medicine, then the time should be fixed. If you have fixed something that this particular medicine I will take in morning, then you must take during morning hours only. You should not change, okay, today I have taken in morning, day after tomorrow or tomorrow just shift it to lunch, and third day again back to morning. So protocol has to be followed. That's again important. Then other than the medication, there are many other things. Like Dr. suggested to me also, that steam just twice or thrice in a day.
just lukewarm water. Excess dose of kadha, that's we started taking. So excess dose of anything is harmful. For that also, it's good to combine allopathy and Ayurveda. It's very good because that gives the one can attain the immunity. It's good to support. Integrated system is always better. It pays also, but excess should not be there. Why? I have noticed, because now I am interacting with many people, and some of the people have started taking kadha 4 or 5 times in a day. So now they had developed some other problem. You can't take food also. So many associated problems may come. So best thing is to consult the doctor. And I will suggest to my own students that in any case, if they are feeling anything, they must consult university doctor first. Then they should go to their own family doctor, or if they have doctor in the city or in town or in a village. That's why. So again, in chat box, I think someone has Gauri Bansal. She is asking that what is difference between protein-based and RNA-based vaccine, and which one is best? This is different technology has been used while making different vaccines. इंडिया में जो वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, वो बेसिकली वायरल बेस्ड वैक्सीन्स हैं. जो mRNA वैक्सीन हैं वो फाइजर की वैक्सीन है. बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में फाइजर की वैक्सीन जो है वो mRNA बेस्ड है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. लाइव एटेन्यूएटेड जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स हैं वो भी इक्वली वैसा काम करती हैं. ये बेसिकली 2 टेक्नोलॉजीज हैं डिफरेंट टाइप की, जो अलग अलग डिजीजेस में हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो प्रोटीन बेस्ड हो चाहे वो mRNA बेस्ड हो. द मेन मोटिव ऑफ दिस वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी इज कि हमको बेसिकली एक वायरस से बेस्ड एंटीजन इज समथिंग, वो mRNA भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, हमें वो बॉडी में इंड्यूस करना है. अगर एंटीजन इंड्यूस होगा, जब इंट्रोड्यूस जब होगा बॉडी में, तो इट इज आवर इम्यून रिस्पॉन्स दैट विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट. तो चाहे वो mRNA बेस्ड वैक्सीन हो चाहे वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हो, बनानी उसको एंटीबॉडीज ही हैं. जो भी टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, अल्टीमेटली फॉर्म उसका वही है कि इट विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, जो अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्शन देगी. दैट इज द डिफरेंट टेक्नोलॉजी. यही 2 टेक्नोलॉजी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करी गई हैं. यूजली इस समय वर्ल्ड में अराउंड 8 to 9 वैक्सीन्स डिफरेंट कंपनीज के थ्रू बनी है. यूएस की 2-3 वैक्सीनेशन हैं, 2 इंडिया की हैं, एक सिंगापुर की है, और ऐसे ही यूके बेस्ड है. बल्कि कोविशील्ड तो यूके बेस्ड के साथ कोलैबोरेशन के साथ है. जो कोविशील्ड है हमारी एस्ट्राजेनेका के साथ है. तो यही 2 डिफरेंसेस हैं इनमें. बाकी रिजल्ट्स लगभग सेम है दोनों के. और यहाँ मैं डॉक्टर साहब की बात से ही जो डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, डीन सर, कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस जो था उसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमिंग मिस ना करें. आज इस समय एपिडेमिक या पेंडेमिक के टाइम पे जो भी फीवर हो रहा है, उस फीवर को वी शुड टेक इट सीरियसली. चाहे बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप सेकेंड डे पे टेस्ट करा ले रहे हैं और आप नेगेटिव आ जाते हैं, एंड यू गेट रिलैक्स कि हमें कोविड नहीं है, हमें शायद टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है. नहीं, ये पैंडेमिक का टाइम है, ये एपिडेमिक का टाइम है. इस समय टाइफाइड नहीं हो रहा है, इस समय मलेरिया नहीं हो रहा है, और हो भी गया है, अगर हम मिसडायग्नोस कर भी लेते हैं तो उससे हमारी जान नहीं जाएगी. हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. अगर आपको टाइफाइड भी है
और हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया है आपका ये सोच के कि आपको कोविड है, तो भी वो उसको कवर कर लेगी, बिकॉज इनिशियल 5 डेज में जो ट्रीटमेंट है वो लगभग सेम है। अगर हम आपको एजिथ्रोमाइसिन खिला रहे हैं तो वो आपके टाइफाइड को भी कवर कर लेगी। बट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम कि आपको अगर नेगेटिव आ गया है आपके सेकेंड डे पे, तो आप ये सोचे कि मुझे कोविड नहीं है और आप टाइम वेस्ट कर दें और ट्रीटमेंट नहीं लें कोविड से रिलेटेड। तब आप जब 7वें-8वें दिन के पास पहुंच जाएंगे, तब आप पैनिक में डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तब तक आपकी साइटोकाइन स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। और साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब क्या है? अगर लेमैन टर्म में मैं बोलूं कि साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि आपकी बॉडी में तोप के गोले चलना स्टार्ट हो गए हैं। तब स्टीरॉइड या और जो मेडिकेशंस हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको रोकने के लिए उनके बस की भी बात नहीं। तब आप डेफिनेटली हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आपको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और वहां भी श्योरिटी नहीं है कि आप बच पाएं या आपका प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली इंटरवेंशन हो। आप को फीवर या कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप डे 1 से अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में आए। खुद अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं करें, केमिस्ट के पास जाके दवाइयां नहीं लें, क्योंकि इस बार यही चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं। मैंने अराउंड 400 to 500 पेशेंट्स इस टाइम पर देखे और बाय गॉड्स ग्रेस लगभग सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। 1 या 2 पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए जो कि लेट स्टेजेस में आए, जिनको हॉस्पिटल जाना जरूरत था। 1 आध 2 की कैजुअलिटी हुई है शायद, बट जो भी लोग टाइम से आए, जिनका टाइमली इंटरवेंशन हुआ, वो लोग सब ठीक हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के इतने सारे लोगों को हुआ, बच्चों को भी हुआ, काफरी में कुछ लोगों को हुआ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों को हुआ। जिन लोगों का टाइमली इंटरवेंशन हुआ, बाय गॉड ग्रेस सब लोग ठीक हो गए। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपका प्लान ऑफ एक्शन ठीक होना चाहिए। आप टाइमली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और खुद डॉक्टर ना ही बने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, Doctor. There is some more questions. Out of curiosity, someone is asking that what will happen when someone is recovered from COVID and takes vaccine nearly after 1 month? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मैंने ये अपने सेशन में बताया भी, बट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को कि आपको अगर कोविड हो गया है, तब आपको 90 डेज तक, 3 मंथ्स तक आपको वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसका भी साइंटिफिक रीजन है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है इसलिए ये गाइडलाइंस बनी है। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद आप रिकवर होते हैं, तब आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी बन गई होती है। और नेचुरल इम्यूनिटी इज नेचुरल, उससे अच्छी चीज तो कुछ भी नहीं हो सकती। वो जो एंटीबॉडीज हैं वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगी। और 3 मंथ्स के बाद जब उन एंटीबॉडीज का लेवल नीचे आ जाता है, तब हम एज अ बूस्टर डोज आपको वैक्सीनेट करते हैं, तो आपका एंटीबॉडीज का लेवल फिर से ऊपर आ जाएगा। फिर से आप जो है उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक और स्टूडेंट का है कि ये आरएनए वायरस है जो कोविड है, तो आरएनए वायरस का कोई वैक्सीन नहीं होती है क्योंकि ये अपना चरित्र बहुत कम समय में बदलता है। क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है, ये सब इल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रिलेटेड, वही मैंने कहा, चरित्र बदलने से मतलब है म्यूटेशन होना। और म्यूटेशन, ये वायरस का काम ही म्यूटेशन है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो म्यूटेशन नहीं हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर वायरस को म्यूटेट करना ही करना है। जैसे हम मैनकाइंड को ही देखें, आपको अगर सरवाइव करना है तो आपके अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। अगर आप बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा, ये एक सृष्टि का नियम है। आपके अंदर बदलाव आएगा तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट दिस डेडली वायरस और एनी वायरस डू। वो अपने अंदर बदलाव लाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और स्ट्रांग होता है। बट एज आई हैव टोल्ड कि वैक्सीनेशन कैसे बनती है, वैक्सीनेशन कोई भी एक सेगमेंट के लिए एंटीबॉडी नहीं बना रही है, उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, उसके अगेंस्ट मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज बना रही है। तो इवन इफ
डिफरेंट म्यूटेंट स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो एक नहीं तो दूसरी एंटीबॉडी किसी ना किसी सेगमेंट को वो पकड़ लेगी और आपको प्रोटेक्शन देगी। Thank you. Another question from Dr. B.G. Lakshmi. She is faculty here, and she is asking why Covaxin is not yet recognized by WHO. Is it safe to take Covaxin? I think already you have responded. या कोवैक्सिन मैंने बताया आपको कि सेफ है, चूंकि ये एक इमरजेंसी का टाइम है और इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारे मेजर्स, ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाते हैं, बट उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, फेज 1 फेज 2 सब क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, तभी जो है मार्केट में उसको अवेलेबल किया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से देखा गया कि कितनी एंटीबॉडीज अच्छी तरह बना पा रहा है ये कोवैक्सीन या नहीं। बल्कि कुछ इंस्टेंसेस में तो ये भी देखा गया है कि उसकी एफिकेसी कोविशील्ड से भी बेटर आ रही है। इनफैक्ट डॉक्टर फाउची जो अमेरिका के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, रिनाउंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, उन्होंने काफी तारीफ करी है कोवैक्सीन की। ये 617 म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव है। सो एज आई सेड कि ये वाला डाउट हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमें कौन सी वैक्सीन मिल रही है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बीइंग इन इंडिया हम लोग 2 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल कर पाए और हम बाहर के देशों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कितने सारे कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर वैक्सीनेशन बन ही नहीं पा रहा है। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री वी शुड बी प्राउड कि हमारे यहाँ इतने इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं, साइंटिस्ट हैं कि हम लोग इतनी कम संसाधन होने के बावजूद भी वर्ल्ड के साथ compete कर रहे हैं। सो आई मीन देयर शुड बी नो डाउट, आप बिल्कुल जा सकते हैं किसी भी वैक्सीन के साथ। Thank you, Doctor. There is one more question that, sir, we have heard that whatever we feel difficulty in breathing, we should lie flat or pillow should be placed under chest. From doing this, oxygen level can be maintained. Is this true information or just not? Yes, definitely true. बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने। It's a right information. ये साइंटिफिक बेसिस है जिसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। आप अगर जब लेटते हैं या सोते हैं, तो आप अगर प्रोन पोजीशन में सोते हैं विद योर चेस्ट टुवर्ड्स योर बेड, तब आपको सांस लेने में आपको ज्यादा आसानी होती है। एंड द रीजन इज हम लोग सोचते हैं कि चेस्ट लंग्स का एरिया जो है यहाँ पर है, तो हम अगर ऐसे लेटेंगे या ऐसे बैठेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से इनहेल कर सकते हैं। बट एक्चुअली मैक्सिमम पार्ट जो है लंग्स का वो बैक साइड में है। तो जब हम प्रोन पोजीशन पे लाई डाउन करते हैं तो उस पार्ट को ज्यादा एरिया मिलता है इन्फ्लेट होने के लिए। तो जब वो ज्यादा इन्फ्लेट होगा तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल उतना बेटर होगा। तो हर किसी को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोगों की तो आदत ही होती है कि वो उल्टा होके सोते हैं। जैसे आई हैव दिस हैबिट ऑफ लाइंग इन अ प्रोन पोजीशन। मैं नींद ही मुझे उसी पोजीशन में आती है। बट कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि 1 or 2 आवर्स इस तरीके से करें। उससे डेफिनेटली ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बढ़ेगा। बट मैं तो चाहता हूं कि वो लेवल ही ना पहुंचे आपका। अगर आप ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होगा ही नहीं। अगर आप 5th और 6th डे तक डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको वो सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाएगा ही नहीं। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप 5th और 6th डे तक डॉक्टर के कांटेक्ट में आ गए हैं तो आपके वो ऐसी मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे कि आपको ऑक्सीनेशन आपका नीचे नहीं जाएगा। आपको किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंसंट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन फाइंडिंग द राइट डॉक्टर और कमिंग इन कांटेक्ट विद द राइट डॉक्टर। आपका सैचुरेशन लेवल नीचे ही नहीं जाने देंगे वो। And another question is, can anybody be administered a complete dose from 2 different vaccines? No, it is not advisable. It is not advisable. आपके पास आपने अगर एक वैक्सीन लिया है तो आपको सेकेंड डोज उसी वैक्सीन का लेना है।
बिकॉज एज आई हैव सेड कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारे 2 वैक्सीन हैं वो बिल्कुल सिमिलर तरीके की टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है उसमें। एक जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को लेके बनाई गई है, और कोविशील्ड जो है वो इनएक्टिवेटेड एडिनो वायरस जो एक तरीके का वायरस है प्लस द सेगमेंट ऑफ कोरोना वायरस, इनकी कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक ही तरीके की वैक्सीन के दोनों शॉट्स लें, और ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। और ये आप खुद भी नोट कर लें कि आपको कौन सी वैक्सीन मिली है। ऑल्दो आप वहां जाएंगे तो आपको उसी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज वैक्सीनेशन इज अ हरकुलेंट टास्क, तो कई बार वैक्सीनेशन सेंटर पे गलती हो सकती है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप खुद याद रखें कि आपने कौन सी वैक्सीनेशन ली है, बिकॉज ह्यूमन एरर आर पॉसिबल एंड इट इज अ लार्जेस्ट ड्राइव, और जो हो रही है तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड आप खुद अवेयर रहें कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, so that you can get the same dose of the second vaccine. And I think here is last question for this session from student side. It was in news year back that some people got polio after taking polio vaccine. If it is true, is it possible in corona vaccine also? पोलियो बेसिकली जो है अब तो इरेडिकेटेड हो गया है इंडिया से, और पोलियो वैक्सीन लेने के बाद ऐसी घटना हुई है उसमें भी मैं वही कहूंगा कि आई हैव नॉट हर्ड कि ऐसा कुछ हुआ है, बट अगर हुआ है, अगर आप कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्स रहा होगा, या तो देने के टाइम पे या कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि उसको वैक्सीनेशन मिल नहीं पाया होगा प्रॉपरली, इस वजह से ऐसा हो सकता है। अदरवाइज पोलियो तो इरेडिकेट अब इंडिया से हो चुका है, और ये एक इंडिया का बहुत बड़ा ड्राइव था, पोलियो ड्राइव। मैंने खुद भी इसमें काम किया है, तो मुझे पता है कि क्या सिस्टम बनाया था। मतलब इट वाज हरकुलेन टास्क, मतलब हर बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाना, और द रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जो ड्राइव चलाई गई, एक इतना मतलब वर्ल्ड वाइड ये एक एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया ने, एक चैनल बनाया है, आशा वर्कर्स, ANM, इतना एक ड्राइव बनाया, और उसी ड्राइव को आप मानेंगे नहीं कि जो पोलियो वायरस को वैक्सीनेशन का जो ड्राइव था, उसी ड्राइव के मॉडल पर उन्हीं वर्कर्स को यूज करके हम लोग ये वाला ड्राइव भी चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मॉडल है इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करने के लिए, कि हमारा आधा काम तो ऑलरेडी इन प्लेस है, क्योंकि हमारे पास वो वैक्सीनेटर्स हैं, वो लार्जेस्ट ड्राइव हमारे पास है, वो हमारे पास एक्सपीरियंस है। वरना इंडिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करना, it's not an easy job. It's a Herculean task. And sir, this someone is asking that any information about effectiveness of COVID drug 2DG. Is there अभी ये नई ड्रग डेवलप हुई है, रिजल्ट प्रॉमिसिंग है ऐसे कह रहे हैं, बट इट इज नेव स्टेज, अभी काफी प्री मैच्योर होगा कि अगर मैं इस पे कुछ कमेंट करूं, बिकॉज कोई भी ड्रग नहीं आती है उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट रिजल्ट प्रॉमिसिंग है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये कोई वंडर ड्रग रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कह रहे हैं कि ऑक्सीनेशन लेवल इम्प्रूव होता है, और हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी है इस ड्रग में, और मैं भी होप करूंगा और विश करूंगा, प्रे करूंगा कि ये ड्रग बहुत अच्छी तरीके से काम करे, और हम लोग वर्ल्ड में ये एग्जाम्पल सेट कर पाए कि वी हैव डेवलप्ड समथिंग important in this COVID time. But we'll have to wait and see to give the right answer, or it will be premature for me to say or comment anything about this drug right now. Doctor, I would like to say here about deoxyglucose. Dr. Anil Kumar ji, just a minute, Doctor. Just a minute. I just clarify. Actually, this DG is nothing. It is a deoxyglucose,
And whenever viral infected cell is there, until unless viral is not multiply at very higher rate. So initially, once virus is inserted in the cell, then uptake of this deoxyglucose is actually, once it is there, then it is not providing the energy just like glucose, because it is a derivative, deoxyglucose. So uptake is there, then it is defooling the virus. So it is called cheating of the cheaters. So I think DRDO scientists have done a really good work. Only initial phase of this, if people are giving, then definitely I'm sure that this drug will be effective. Yeah, that's good. I think Dr. Anil Kumar ji has nicely explained that certainly this drug should work. And then there is one question already Dr. Saab has answered, that if in between of 2 doses, someone gets positive with COVID, then it is advised to take the second dose of vaccine. What should we do in that case? Yeah, similarly, I mean, आपको उतना ही वेट करना है, जैसे आप रिकवर करते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा जब आप सिम्टम लेस हो जाते हैं, उसके बाद आपको वेट करना है, बिकॉज आपने नेचुरल इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो गई है, तो आपको वेट करना है उस टाइम तक, और उसके बाद सेकेंड डोज लेनी है, एज आई ऑलरेडी मेंशन इट बिफोर. और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, एज डॉक्टर अनिल हैज एक्चुअली explained it very nicely. पूरा उसका mechanism उन्होंने explain किया, because he is into this field, और उनको काफी अच्छा तरीके से बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स पता है कि किस तरीके से काम करता है ये ड्रग, और उसी बेसिस को लेके ये ड्रग को बनाया गया है. बिकॉज कोई भी ड्रग जब हम स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हम पूरा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि हम उस तरीके से, किस तरीके से हम स्टार्ट करें, किस लेवल पे हम स्टार्ट करें कि हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक दें या उसको बीफोल्ड कर दें. तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसका दूसरा तरीका भी बताया है कि अगर हम अपना ग्लूकोज इनटेक उस दौरान कम कर दें, ये तो हम ड्रग बना रहे हैं बीफोल्ड करने के लिए, वायरस के लिए. यूजुअली ये देखा गया है कि कोविड में एक बहुत रिनोन्ड डॉक्टर हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने कुछ पेशेंट्स के साथ क्लिनिकली, कि अगर हम अपना ग्लूकोज इनटेक उस ड्यूरेशन में कम कर दें, तो हम वायरस को मल्टीप्लिकेशन होने से रोक देंगे, क्योंकि उसको उसका फूड नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई करता है. एंड शी हैज टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो डाइट बताई थी उन्होंने, बहुत सारी चीजें बताई थी कि हम प्रोटीन डाइट पे रहें, कार्बोहाइड्रेट को कम यूज करें, जिससे कि वायरस को मल्टीप्लिकेशन होने का चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज वायरस इन्हीं चीजों पे फीड करता है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद ये सब लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट पे रहें. तो मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज साइंटिफिक बेसिस हम लोगों को रखना है, और प्रैक्टिकल भी होना है कि हम रोटी नहीं खाएं या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं खाएं, क्योंकि जो इजिली अवेलेबल फूड है, बीइंग अ डॉक्टर मैं हमेशा से ये एडवोकेट करता हूं कि हम वही चीजें करें जो सबके लिए पॉसिबल है. जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाए प्रैक्टिकली, वो कर पाना बहुत मुश्किल है. साइंटिफिकली ठीक है, ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए कि हम रोटी बंद कर दें, चावल बंद कर दें, ये सारी चीजें बंद कर दें इलनेस के टाइम पे, और हम सरवाइव कर पाए. उससे उल्टा हो क्या सकता है कि हम शायद अपनी न्यूट्रिशियस डाइट ही पूरी तरीके से नहीं ले पाए, बिकॉज इन इंडिया हम लोग हमारी जो डाइट है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. बट कहा यह गया है कि हम प्रोटीन डाइट पे अगर ज्यादा रहेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा. एंड the mechanism of this drug is same as explained by Dr. Anil sir. Dr. Sir, just my request, of course, that domain is for Dr. Madam Chaudhary, but I would like to request you to kindly suggest about diet also. Just maybe in 2-3 minutes, what we should eat, those who are affected or those who are healthy. So what precautions regarding diet we should take? So, well, I know that's the domain of Madam Chaudhary, but I think you can certainly share. Thanks, Dr.
Are you asking me? Yes, sir. Yes, sir. Certainly. Okay. डाइट एज यूजुअल मैंने आपको बोला कि हम सबको प्रैक्टिकल रहना है, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में जो भी हम अवेलेबल फूड है हमारे घर, हमें सब कुछ कंज्यूम करना है, जो भी अवेलेबल फूड है। इवन डाइटिशियन जब अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बोलते हैं कि जब हमको वेट लूज करना होता है कि ये सारी चीजें बंद कर दें, हम कीटो डाइट पे आ जाएं और इस तरीके से आ जाएं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इट इज नॉट गुड ऑल्सो फॉर द बॉडी। क्योंकि जो हमारे पास रेडली अवेलेबल फूड है घर में, वो हम सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग ठंडा पानी नहीं पिए, ठंडा खाना नहीं खाएं, और न्यूट्रिशियस फूड जो भी हमारे पास रेडली अवेलेबल है घर में, हम सब कुछ ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज जो मैं शायद कहना चाहता था उस समय, जो मेरे दिमाग से निकल गया, कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स महीनों से खाए जा रहे हैं, या विटामिन सी है महीनों से खाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है हमको। या फिर काढ़ा है तो दिन में 4-4 5-5 बार काढ़ा पी रहे हैं, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, सालों से लिए जा रहे हैं। और आपको एक इसका एग्जांपल दूं कि जो गिलोही है, या मुझे एग्जैक्टली ठीक से नाम भी उन चीजों का नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से, ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि स्वस्थ थे, जिनको कोविड तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये सारी चीजें ज्यादा खाने की वजह से और ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से उनको लीवर सिरोसिस होने लगा। और जो हमारा लीवर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक बाढ़ आ गई ऐसे पेशेंट्स की। और बाद में जब पूछा गया उनसे कि आप लोग किस डाइट पे थे या किस थे, तो पता लगा कि वो लोग गिलोहे जो है वो उसका कंजम्पशन ले रहे थे इतने टाइम से। आयुर्वेदा इज गुड, एलोपैथी इज गुड, होम्योपैथी इज गुड, एवरी पैथी इज गुड, बट आप अगर किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। सिमिलरली एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी, आप लोगों को कंटिन्यूसली नहीं लेना है, आप 10-15 दिन तक लीजिए, उसके बाद उसको ब्रेक दीजिए 10 दिन का, फिर आप ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कंटिन्यूसली आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है, बिकॉज विटामिन बॉडी में रिक्वायर्ड है, लेकिन एक कंडीशन होती है हाइपर विटामिनोसिस। अगर वो आपकी बॉडी में हो रहा है हाइपर विटामिन की वजह से, तो वो दूसरी तकलीफें बढ़ा देगा। So I think it's fine. Thank you, Dr. Sahab. Now I request Dr. Gaurav Sharma if Dr. Anil Kumar ji has something, because 3-4 minutes are only left. Is it? So Dr. Gaurav Sharma, please. Thank you very much, sir. Because we are running short of time, I would request our Director Education, sir, Dr. Anil Kumar, sir, to kindly sum up and give his important comments. Please, sir. Director Education, Dr. Anil Kumar, sir. Thank you, Dr. Gaurav Sharma. Indeed, it is my pleasure to sum up this very, very important webinar that is being conducted by NSS to get aware our students, both UG and PG students, and besides faculty members also. Indeed, I'm really very much happy that Dr. Puneet Chaudhary has very nicely covered all the aspects, and he is so simple and very polite in nature, and I found his very sincere. And even somebody is writing on WhatsApp, he immediately returned back onto the mobile, and then he used to talk. And it is shown his dedication and devotion towards the profession. And probably I know, because he was explaining about his father. So this legacy has come from his father, where his father has contributed a lot for making the careers and future of many of these students. Indeed, really, I am thankful, Dr. Chaudhary. And I think he already covered many of the things, but I would like to add upon some of the important things. Like we already know
that we have continuously bombarded with the different kind of the dreaded diseases, being they are the bacteria, viruses, fungi, and so on and so forth. Now, question comes in our mind, how would body cope up with the threats of these million or trillion different kind of the pathogens they are emerging and re-emerging. So in these circumstances, the most important part is that you have to maintain your homeostasis. And homeostasis of the body is basically governed with three very, very important organ system, which is called nervous system, immune system, and endocrine system. So these are the three very, very important systems, and they have been collectively regulated by a mechanism that is called neuroimmunohormonal regulations. And it is very, very important if you understand the interconnectivity of these three different systems, then certainly you will be able to maintain your homeostasis, you will also maintain your health, and subsequently you will curtail the incidence of the different diseases. As Dr. Chaudhary in the beginning, he has talked about the anxiety. Anxiety is really very, very important also, as he already explained, but simultaneously over anxiety is always been problem. And ultimately this anxiety is affecting your endocrine system, not only endocrine system, I think every vital organ of your body, but most importantly that is being affected, that is immune system of your body. And you know, the immune system of the body is not only dependent on your acquired habits or the environment, but simultaneously it is predisposition of your genetic material that is basically inherited from your parents or maybe grandparents. So in these circumstances, you can see even you are eating the same kind of the food, living in the same kind of conditions, maybe in the same family, but still you will find the difference in your immunity. Some are very, very susceptible, some are very, very resistant. And it is because of the genetic predisposition by which this immune system is governed. There are two very, very important components that is called innate immunity and the induced immunity. Induced immunity is basically governed by cell-mediated immunity and the antibody-mediated immunity. And here the role comes that how will you able to make strong this immunity? Whether it is innate immunity, it is basically first line of defense. However, later on the induced defense, it is dependent on to the environment, your dietary habitat, and so on and so forth. So under the circumstances, ultimately you have to make your immunity stronger and stronger. And what to do for that reason? You have to maintain your mental health, your physiological health, your psychological health. And because of these health, if you are able to maintain beside the physical health, of course, and all these health, if you are able to maintain, certainly you will have to have the stronger immune system. Whatever way you do it, whether you have to take good nutrition, you have to take good food, you have to reside in a good environment, and so on and so forth. But most important thing is, once disease is there, you have, because there is a notion, prevention is better than cure. Under that circumstances, you know, therapeutics is the secondary thing. You have to prevent the disease. And in the prevention, I think your immune system is going to play a very, very significant role. And suppose if your immune system is weak and the infection is there, then you know, then people have developed the remedies. They are the therapeutic remedies or even preventive remedies. And now preventive remedy, the most important, the vaccine is considered as the most powerful weapon to save the immunity, to save the humanity. And here I will say that before independence, you know how much morbidity and mortality rate is there. A lot of death is there because of many of the infectious diseases. But later on, because of the awareness and because of the vaccination program, mass vaccination program, like you have seen, the polio as well as the smallpox, completely eradication of these diseases are there. So I'm also saying, as Dr. Chaudhary pointed out, we have to be optimistic and we have to have hope that whatever vaccine has been given, this is completely safe, because it will not come until unless we are not following the safety procedure. And safety procedure is not 100% foolproof. You know, whenever
benefits is more compared to the risk, and efficacy is, let's say, 90%, then even that circumstances, there is no option left. You have to launch such kind of the vaccine or maybe drug to save the humanity. Now, another very, very important point which I would like to mention over here, that whenever there is a problem in the immune system, then in this circumstances, you have to take care by natural means. Natural means, this is also called, suppose as Dr. Punit Chaudhary explained, herd immunity. Herd immunity means immune system is basically, it is coming through infection, natural infection. And once the population is infected, and then certainly what will happen, it is called development of herd immunity. So it will change it will block the chain of the viral infection and so on and so forth. And the next thing comes that by deliberate inoculation, that is called immunization program. So deliberate means if you have to inject the viral antigen, because in this case we are talking about COVID-19. So we have to take the viral antigen. This is the one way, traditional way of making vaccine. And second way was now it is basically the credit has generally been given of this vaccine production, a English physician that is called Jenner, Edward Jenner. But unfortunately, before that in our country, our Indian system, we also have these inoculation procedure, and they are very, very holistic, and I will let you discuss sometime. Then these holistic procedures have been used for inoculation, but because of there is no documentation of 14th century properly, henceforth people have not given that cognizance. So the Edward Jenner, who was the first who find it out how to eradicate smallpox by giving cowpox vaccine or cowpox viral vaccine. So there is many questions coming from the student. They are asking about the viral vaccine is there, RNA vaccine, protein vaccine. In this, you have to be very clear that ultimately, whether it is the RNA vaccine or the protein vaccine, ultimately in your body, there must be exposure of those proteins. Whether RNA is given, then RNA have to insert it in your cell, and then your cell has to produce the protein, and against which you will be able to develop the antibodies. And as I told you, that these Covishield and Covaxin by Serum Institute and also by Bharat Biotech, they are different, entirely different in the principle. One is basically having this Covishield is having adenovirus, and in this adenovirus they have inserted this COVID RNA, and once it will go in our body, it will be inserted and produce the protein. And henceforth, there is a time interval which is continuously increasing. People say how much protein is produced and how much protein is ultimately able to induce the best immune response at what time. And accordingly, they are changing the time. So nothing to worry. People say that it is because of vaccine is not there. That's why they are increasing that time. It is not so. And secondly, the Bharat Biotech Covaxin, it is basically attenuated vaccine. So one of the question has been asked by the student that there is a chances of reverse mutation. Yes, of course, there is always been chance because it is an attenuated viral, and attenuated viral once sometimes mutated, then it will revert back to give rise the infection, or it will cause the havoc. And this is, of course, again, one in many of the million of the cases. So this is the things which I would like to mention here. And also I would like to say that most of the concept of vaccination and prevention, they comes only through scientific knowledge. And once scientific knowledge is there, scientific rationalization is there, then certainly the things will be acceptable. And because of this, I think we need not to worry about the vaccine. Our country is really doing wonderfully well at the world level, and we have proven it. Our doctors have also proven it. Every community, whether they are policemen, security men. So I think I would like to
first give salute to all those corona warriors, whether doctors, whether the farmers, because farmers are also important part. They are feeding the population. Then policemen. So all they play pivotal role in curtailing the incidence of this corona viruses. And I'm sure that our country is really going towards the self-reliant, and time will come. Even at the world level, our doctors and physicians, they have proven their worth. Even in America, England, you will find our Indian doctors has been liked very much. And that's why I'm saying that our country is really having a lot of competent people and competent personnel. So need not to worry much. Only you have to explain your problem in a nice manner so that you will get solution. I'm sure that the talk given by Dr. Puneet Chaudhary is starting from anxiety to do and what not to do whenever you are going for vaccination or after vaccination is really enlightening our student and the faculty member so that they will be highly benefited and they will able to really able to overcome many of the confusion that they have having. Thank you very much, Dr. Gaurav Sharma, and thank you once again, Dr. Puneet Chaudhary, for your enlightening and scintillating talk. Thank you very much, sir. Thank you, Director Education, sir. So in the end, I would really like to thank Dr. Puneet Chaudhary, sir, from my core of the heart for sparing his time and giving the valuable information to all of us. We have all been benefited by you, sir. Thank you, and we hope to get such guidance from you in the near future as well. I would like to thank our Dean Agriculture, Dr. Chaturvedi, sir, who in every meeting has talked about student safety and what NSS can do for the students. And thank you, Dean, sir, for advising us to hold such type of program. I would also like to thank Dean Horticulture, sir, for being present in this program. Though his network was a bit slow, but on and off, he was in touch with me. And I would like to thank Dr. Anil Kumar, sir, Director Education, sir. Actually, his presence here as a biochemist is also acknowledged because he has told many things which the student wanted to know, saving our time. Thank you, Director Education, sir. He is always there for the students, helping them and looking for such programs in the near future under your guidance, sir. Thank you very much, sir. Thank you to the Student Welfare Officer, Dr. Manmohan Dobriyal, sir, who is always there at the backstage to support us. My team, Dr. Prabhat, Dr. Ashutosh, Dr. Priyanka, they have been doing extraordinary work during this Corona period for the students. Thanks to my faculty members and dear students. Without you, this program could not have been possible. As always, in the last but not the least, no webinar is being possible without the help of Dr. Shailendra and Dr. Tanuj, whom I thank once again for giving and sparing and holding such a beautiful program without any disturbance. Thank you very much. Thank you once again. With this, I would like to end this program. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.